hundreds of flyovers all over the country and 55 flyovers in Mumbai. The phase which improved the pace of movement all over the country. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు నితిన్ గడ్కరీ గారి సందేశం కంటే ముందు సార్ శివశంకర్ సార్ అరే హలో ఆనరబుల్ నితిన్ గడ్కరీ జీ ఈరోజు ప్రజాంకితం చేస్తున్నారు. వేల కోట్ల రూపాయలతో భారత ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వేల కోట్ల రూపాయలతో ఇచ్చినటువంటి నూతన సదుపాయాలు Prime Minister Narendra Modi ji, who prioritizes infrastructure as the backbone for national development, and Union Minister for Road and Transport Nitin Gadkari ji, whose futuristic approach has redefined India's roadways. Projects worth 3,890 crore rupees are being inaugurated today, and foundation stones are being laid for several other development projects. 5 projects developed by the MoRTH and the NHAI are being inaugurated with a total budget of 3,700 crore rupees. 4 major projects under NHAI being inaugurated are 4-laning of the NH 363 Mancherial to Ripallewada and Ripallewada to the Telangana-Maharashtra border 94.60 kilometers at a cost of 3,526 crore rupees aims to enhance connectivity between Maharashtra and Telangana. The Mancherial-Ripallewada corridor is part of the Nagpur-Vijayawada economic corridor connecting central and south India. Its completion will cut travel time by 6 hours, improving passenger and freight movement across Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh. Animal underpasses and overpasses near Kaval Tiger Reserve ensure wildlife safety as an eco-friendly feature. Construction of a 6-lane vehicular underpass VUP at Karthal bypass with service roads 1 kilometer costing 29.2 crore rupees will eliminate a major black spot on NH44, enhancing safety and preventing accidents. Construction of service roads and junction improvements at 8 black spot locations along NH44, 2 kilometers total, with a budget of 18.4 crore rupees, will streamline local traffic movement and significantly reduce road accident risks. Under the Ministry of Road Transport and Highways, through State R&B NH Wing Telangana, upgradation to 2-lane road with paved shoulders of Nirmal and Khanapur section of NH61 has been completed, spanning in a length of 17.79 kilometers with a budget of 126.50 crore rupees. The project will enhance transportation in the region, cutting travel time significantly between Nirmal and Jagtial, especially for heavy traffic heading to Khanapur and Jagtial. Together, these projects will improve regional connectivity, reduce travel time, and enhance road safety, especially at high-risk locations. Additionally, the foundation stone is being laid for 7 important road development projects under NHAI in the Adilabad, Nizamabad and Kamareddy divisions with an estimated cost of 190 crore rupees, which involves the construction of a 6-lane underpasses, service roads, footover bridges,
junction improvements to ensure smooth and safe travel, easing the movement on one of the busiest route of Nagpur-Hyderabad section of NH44 in Telangana. These developments will not only make daily commutes smoother and safer, but also open new opportunities for trade, tourism and investment, ultimately uplifting the overall quality of life in the region. All of this has been made possible due to the vision and leadership of Nitin Gadkari ji, whose unwavering focus on infrastructure is paving the way for a stronger, more connected Telangana. ఇప్పుడు మనందరి కారతాళధ్వనుల మధ్య మై నౌ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ నితిన్ గడ్కరీ గారు వారి ముఖ్య అతిథి సందేశం కోసం ఆహ్వానిస్తున్నాను. केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय किशन रेड्डी जी, दूसरे सहयोगी आदरणीय बंडी संजय जी, तेलंगाना के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सीता काका, यहां के एमपी आदरणीय गिडोम नागेश जी, एमपी वंशी जी, एमएलए हरीश बाबू, एमएलए के लक्ष्मी, एमएलए पायला शंकर, एमएलए रामाराव पटेल और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अंदर की नमस्कारम. बागुन्नारा. मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और हम लोग जो काम करते हैं उस विचारों की प्रेरणा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे. ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन जो अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, वही हमारे राजनीतिक जीवन का उद्दिष्ट है. और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस जिले में आते हुए मैं आप सबके साथ आपकी समस्या को समझने की एक अवसर मुझे मिला है. मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं विदर्भ में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था. गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी क्षेत्र में मैं आज भी 1200 एकल विद्यालय चलाता हूं. हमारे 1600 शिक्षक हैं और करीब 18,000 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं. सरकार से 1 रुपए का अनुदान नहीं लेते हैं. भावना यही रहती है कि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होना चाहिए. चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है. आज गढ़चिरौली जिला बदल रहा है, जो आपको लगा हुआ है, और उस जिले में अनेक बार मैं आने के कारण वहां की समस्याओं को मैं ठीक प्रकार से समझ चुका हूं, और इसलिए मैं ये समझ सकता हूं कि आप सबका दुख और दर्द क्या है. दुख और दर्द जो है, हर युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को उसके सही फसल के दाम चाहिए, और सही में हर गरीब को मकान चाहिए और रोटी चाहिए. मैं हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से 90% मेरा समय मैं किसानों में काम करता हूं.
4 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जा दाता बने, ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बने, अब हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन दाता बने, और अब बिटुमिन दाता नहीं तो हाइड्रोजन दाता बने। इसी उद्देश्य को लेकर मैं काम करने की कोशिश करता हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, पीएचडी मिली है, और 13 में से 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में काम करने के लिए मिली है, वाटर कंजर्वेशन में काम करने के लिए मिली है। मैं सबसे पहले किशन जी को, बंडी संजय जी को, कोमती जी को, यहां बैठे हुए विधायक, एमएलए, एमपीज को आह्वान करूंगा कि एक छोटा सा काम आप करिए। जो काम मैं विदर्भ के क्षेत्र में, जहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वहां काम कर रहा हूं। 1000 अमृत सरोवर हमने बनाए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस गांव में कुएं का पानी 1 घंटा मुश्किल से पंप चल रहा था, अब उस गांव में 12-12 घंटे पानी मिल रहा है। आप देखिए, कोई नौकरी करने वाले अपने यहां सज्जन बैठे होंगे, वो क्या करते हैं? वो हर साल बैंक में अपने सैलरी के 5-10% पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो वो पैसा उनके काम में आता है। जैसा पैसा डिपॉजिट हो सकता है, वैसा पानी भी डिपॉजिट हो सकता है, और ये हमारे यहां यशस्वी रूप से हुआ है। एनएचआई के तरफ से मिट्टी लगती है रोड के लिए, हमने नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। जो डैम थे उसका जो मिट्टी थी वो निकाली ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। 1 पैसा खर्चा न करते हुए हमने ये सब काम फुकट में करके दिया। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी को प्रार्थना करता हूं कि मैं एनएचआई के तरफ से आपको हजारों जगह पर अमृत सरोवर बनाकर देने के लिए तैयार हूं। 1 पैसा नहीं चाहिए। आपके तालाब जो होंगे उसका रुंदीकरण, खोलीकरण करके उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं तो आपके डैम होंगे, उसकी मिट्टी निकालने के लिए तैयार हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो तेलंगाना के किसानों को होगा। जो किसानों की फसल है उनका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। यही हम सबका सपना है। और इसलिए वाशिम जिला जो है महाराष्ट्र का, आपको लक्कर है, वो जिला और गढ़चिरौली जिला दोनों भी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपने कार्य के लिए दोनों जिलों को दत्तक लिया है। वहां अलग अलग प्रकार के उद्योग, व्यवसाय, तांत्रिक शिक्षण